Okay, the principles are focus on the user outcomes, restless invention, and the diverse empowered teams. Okay, so these are the three principles I can say. So we have covered our focus on the user outcomes, restless invention also, and for group A only we have covered diverse empowered team, because in diverse empowered team we have our empathy maps, and that is our lab session. So we have done it with the group A, and group B members we are going to cover this particular topic with you by tomorrow. Fine. So let's continue with further. Next, I can say that we have our drivers. In this, we are going to discuss the 3 points. Means the 3 points, which one? Just let me show you which 3 points we are going to perform. Yeah. Observe, reflect, and make. These 3 points are of the restless invention. Okay. So we are going to discuss about these 3 points, that what we have in a restless invention. So see, there is a kind of quote we have: understand the present and envision the future in a continuous cycle of observing, reflecting, and making. Means, according to this particular line, what we have to do, we have to just understand the present condition, that what in present we have, and we have to envision the future, that what can be a future we have, what kind of, I can say, advancements we have in the future. For that, we have to continue with a continuous cycle of observing. Yes, because you know very well, for getting some, for getting any growth in something, we have to observe that thing. So, in a proper continuous cycle, we have to observe that, we have to reflect it, and also we have to work on it. Okay. So see, we have this restless invention, and further in this we have 3 points, that is observe, reflect, and make. So let's discuss these things. If I talk about observe now, see, get to know people, uncover the ideas, test your ideas also. Okay. In this, again, same thing that we have, gathering, and gathering. How? You have to do what? You have to attend some meetings, some webinars, seminars, whatever you have, from where you can grab the knowledge. So you have to do that particular thing, so that you can know persons also on a particular topic, what others have, what are the views other people have. You should try to uncover them. Okay, you should try to uncover their needs also. Okay, and you should try to test your ideas also. So this is observe. It means, in a short form, I can say that you have to observe the environment, कि हाँ जी, जिस भी particular condition में आप हो, उस particular condition को relate करना है आप लोगों ने अपने साथ, ये आपको observe भी करनी है properly. Then next we have reflect. If I talk about reflect, in reflect we have build understanding, form intent, commit to decisions. Means whatever you have observed, उस observations के basis पे आपको अपने understandings को build up करना है. Like एक prototype I can say. Okay? प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए शुरुआत करनी है आप लोगों ने. जो भी आप लोगों ने सोचा है, फर्दर उसे एक स्टेप लेकर जाना. मीन्स उसके ऊपर फर्दर आई कैन से लाइक आई वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन. ओके, it's just an example I'm taking. I want to develop an application. So based on that application, first of all, I will do observe step. Means I will try to observe that what we have, what we don't have. Okay, so I will just try to observe the particular condition. Based on that condition, what I will do, I will just try to reflect it. How? For example, for any cab facility, I have to first of all fetch that how many persons are there who have I can say who are having their vehicles, but they don't have any kind of uh, way to earn the money from them. So मैं क्या करूँगी, ऑब्जर्व किया कि हाँ जी मुझे नीड है किस चीज की, एक कैब फैसिलिटी की. उस कैब फैसिलिटी के लिए मैंने क्या रिफ्लेक्ट किया कि मीन्स मैं क्या करूंगी, एक कैब फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन बनाऊंगी. और ये मैंने रिफ्लेक्ट में किया है कि मैं बनाऊंगी. ठीक है, और जब मैं बनाना शुरू कर दूंगी, या फिर जब वो इसका प्रोटोटाइप प्रॉपरली फंक्शनिंग मोड पे आ जाएगा, दैट इज योर मेक. राइट. सो मेक में क्या होगा, एक्सप्लोर कर लिए अपने आइडियाज. आपने प्रोटोटाइप जितनी भी प्रोटोटाइप की पॉसिबिलिटीज थी, एक चाहे प्रोटोटाइप बोलो या फिर फाइनल आउटपुट बोलो, तो वो आप लोगों ने डेवलप किया और अपने आउटकम्स को स्टार्ट किया. आउटकम नहीं, उसका जो फीडबैक है वो आना शुरू हुआ. तो ये सारा प्रोसेस होता है आपके इन 3 पॉइंट्स में, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड मेक में. सी, if research is a discipline of understanding the world,
डिजाइन इज द डिसिप्लिन ऑफ शेपिंग इट. फाइन. ये वर्ड सर ध्यान से पढ़ना, कुछ भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इफ डिसिप्लिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज if is the discipline of understanding the world, then you can be asked like I can say fill up that what is the discipline for shaping it. So you can answer that design is the discipline for shaping it. Okay. See, while research asks what is design, ask what should be. Okay. जो रिसर्चर होता है वो यही पूछता है कि what is, और जो डिजाइनर होता है हमेशा ये पूछता है what should be, क्या हो सकता है. ठीक है. So design problems are problems which no predetermined solution, जिनके पास कोई भी solution नहीं है. If you remember, we have covered a spiral model. स्पाइरल मॉडल में हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं. ठीक है. लेकिन इस केस में क्या होगा, हम अगर रिस्क एनालिसिस लेके भी चल रहे हैं, स्टिल वी डोंट हैव एनी प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन, बिकॉज हमें उन पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है. ठीक है. और these problems are not small, not of a smaller level, they can be of a higher level also. So they are questions with no right answers. They require us to make decisions about an uncertain future. So design thinking की हेल्प से आप लोग वैसे करते क्या हो, यही करते हो कि आप लोग अपने डिसीजंस बनाते हो विद अबाउट एन अनसर्टेन फ्यूचर. आपको नहीं पता, क्या पता वो फ्यूचर में काम करेगा भी नहीं करेगा, but still you are working with that. Fine. So see, first one that we will continue is observe. Now, to derive meaningful outcome for the user, we must first gain a deep understanding of the challenges they face. Of course, अगर कैब की बात करूँ तो आपको सबसे पहले यही मैनेज करना पड़ेगा ना कि आपको यही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या challenges person फेस कर रहे हैं. By constantly immersing ourselves in the world of our users, we ensure that our solutions always address real world needs. Means हमें अपने आप को एक यूजर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसकी जगह अपने आप को रखना है. वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग लाइक हिम. ओके. लाइक कैब की प्रॉब्लम है तो मैं अपने व्हीकल छोड़ के मैं भी अपने पहले प्राइवेट व्हीकल के लिए ट्राई करूंगी. ओके. वी विल इंश्योर कि हाँ जी इसको एड्रेस करने के लिए फर्दर रियल वर्ल्ड में क्या क्या सॉल्यूशन हमारे पास आ सकते हैं. सो दैट इज ऑब्जर्विंग. Here you can see observing is about immersing yourself in the user's world. Fine. Now, whether you are identifying new opportunities or evaluating existing ideas, okay, means चाहे आप new ideas find out कर रहे हो या फिर existing ideas को ही go through कर रहे हो. Breakthrough ideas are born from a deep understanding of the real world problems. Okay, means what you will do, चाहे आप new opportunities को use कर रहे हो, identify कर रहे हो, या फिर already existing ideas को use कर रहे हो, you are going to be in a deep understanding of the real world. आपको वो प्रॉब्लम को एक डीपर लेवल से समझने की कोशिश जरूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ यू थिंक कि मैं सिर्फ अपने लेवल पे समझूं, अपने लेवल पे समझ के उसका सॉल्यूशन निकालूं, so that particular solution will not be effective solution. Fine. This understanding is not gained by sitting at our desk and conference tables. It's gained by getting out of the building and meeting our users where they are. Fine. वही बात है, अगर कैब की फैसिलिटी की बात की जाए तो मैं अपनी व्हीकल यूज करूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं, जब तक मैं अपना पर्सनल व्हीकल छोड़ के एक प्राइवेट व्हीकल के लिए ट्राई ना करूँ. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, लाइक आई वांट टू विजिट सी यू फ्रॉम माय होम, तो अपने पर्सनल व्हीकल को छोड़ के अगर मैं प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करने की कोशिश करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जी यहाँ पे कैब फैसिलिटी की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और किस लेवल तक की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उस कैब की फैसिलिटी में होना चाहिए, क्या वो इंडिविजुअल कैब होनी चाहिए या शेयरिंग मोड पे होनी चाहिए. ठीक है. further can have many more points also. So see, observing users in the world gives you the opportunity to empathize with their experience, understand their context, uncover hidden needs and hear their honest and unfiltered feedback. Fine. तो मीन्स आपको इस केस में क्या करोगे, जब आपके पास ऑब्जर्विंग का लेवल आता है तो ऑब्जर्विंग के लेवल में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अनकवर कर सकते हो, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसका फीडबैक भी ले सकते हो. ठीक है. एज ए इन्वेस्टिगेट देयर वर्ल्ड, सोक अप what you see without judgment and observe the obvious with a critical eye. Fine. So means हर चीज जब भी हम किसी की लाइक हम यूजर्स की अगर बात करें, हम लोग अगर यूजर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हें जिस प्रॉब्लम जो भी उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मीन्स उस पर्टिकुलर वर्ल्ड को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सो वी हैव टू गो व्हाट यू सी विदाउट जजमेंट. ओके. इट शुड बी विदाउट जजमेंट. ऐसा नहीं है कि लाइक
हो सकता है कैब की फैसिलिटीज के लिए जो मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है, उसमें बच्चों के लिए तो वो फिजिबल ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट वाली है, लाइक बहुत ज्यादा उसका रेंट है, आई कैन से लाइक फ्रॉम फॉर द 10 किलोमीटर्स इट विल कॉस्ट अराउंड यू 200, सो वो डेली के लिए नॉट इफेक्टिव है। सो मुझे विदाउट जजमेंट ऑब्जर्व करना है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में नहीं सोचना है कि जो डेली पे कर सकते हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा जो पे नहीं कर सकते डेली इतना अमाउंट। फाइन। एंड ऑब्जर्व द ऑब्वियस विद द क्रिटिकल आई, मुझे एक डीपर लेवल से इजीएस्ट लेवल से सोचना पड़ेगा। नाउ great discoveries often being with an observation that you can't explain. Fine. Now, understanding can't be delegated. Observe as a team when you can and share your findings with each other where you can't. Fine. आपको जिस पर्टिकुलर एरिया में आप ऑब्जर्व कर सकते हो टीम में, वहां पे आपको ऑब्जर्व भी करना है, शेयर भी करना है जो भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है। Everyone on your team should have chance to see their users' world so they can contribute their unique perspective to the situation. Like I can say कि जो भी particular solution है, उस particular solution में जितना inner teammates का रोल है, उतना ही एक यूजर का भी रोल है, उतना ही एक यूजर का भी एक डेमोक्रेटिक, आई कैन से अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक इन आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनके पास भी उतनी ही अथॉरिटीज है कि वो भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। फाइन। नाउ एम्पैथी बिगिंस विद गेटिंग टू नो पीपल as people, not just as users. Fine. Ask open-ended questions about how they live and work. Fine. Listen to their stories to understand their hopes, about their fears and goals that motivate them. Fine. Better yet, put yourself in their shoes to observe the highs, lows, and nuances of their nuances of their lived experience first hand. Means उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, जब भी वो हाई लाइक उनकी लाइफ हाई जा रही हो या लो जा रही हो, कोई भी काइंड ऑफ नॉनसेंस आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उनके केस में, ठीक है, आपको सब कुछ ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फाइन। तो ये तो था आपके पास ऑब्जर्व में फॉर द फर्स्ट पॉइंट, गेट टू नो योर यूजर। देन था अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट। अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट में क्या है? यूजर्स डोंट लिव इन द बबल, दे आर ऑफन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स और interdependent system of people and process that work together to achieve a greater goal. ठीक है, मीन्स दे आर नॉट ऑफन पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। मीन्स क्या बोल सकती हूँ मैं? दे आर नॉट लाइक अ बबल की बहुत ही ओपन, नहीं, दे आर पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बिकॉज वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ द पीपल एंड प्रोसेसेस। मीन्स फर्दर अगर मैं यूजर्स की बात करूँ या पीपल्स की बात करूँ या टीममेट्स की बात करूँ, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो टुगेदर वर्क करेंगे तो ही ग्रेटर गोल अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। फाइन। Now, watch users interact with the people and tools in their environment. Sometimes, the most effective way to help your user is to help the people around them. Sometimes, what is happening? The most effective way क्या है? That they have to help your users. Means you have to help your users to help the people around them. Further, वो भी किसी की help कर सके. Fine. Just give me 1 second. Just covered our points and we are here in our understand concepts. तो understand concept में भी वही चीज बोली गई है that sometimes the most effective way to help your user is to help the people around them also. जरूरी नहीं सिर्फ अगर आपको यूजर्स के साथ एक अच्छे आई कैन से इफेक्टिव वे में उनको हेल्प करनी है, सो इट ऑलवेज नॉट थिंक कि आप सिर्फ उन्हीं की हेल्प करो, यू शुड हेल्प द पीपल अराउंड देम ऑल्सो, सो इट विल क्रिएट a good understanding of context between you and the conditions also. Fine. Then next we have uncover the needs. Of course, users won't always be able to express their needs. See, actually, let me tell you one thing. जो भी हमारे users होते हैं ना, users they are not technical background. Sometimes अगर कोई नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करें, दे आर नॉट फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते आइडियाज। सो वी हैव टू फोर्स देम कि हाँ जी आप बताइए आपको क्या चाहिए, लाइक वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस टू देम,
वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ मॉड्यूल डिजाइनिंग टू देम, कुछ हमें मॉड्यूल्स डिजाइन करके दिखाने पड़ते हैं, कभी हमें कुछ प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है ताकि वो लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके कि व्हाट दे नीड एक्चुअली. ओके, so it's your job to read between the lines and uncover them. Same thing is being taken here, that reveal their challenges and figure out what's the stake if they fail. Even you have to see this thing also, अगर कुछ fail हो जाए तो भी क्या किया जाए. Find out how they measure success and where their existing solution fall short. Means we have to go through with this thing also कि अगर हम सक्सेस रेट देखते हैं तो क्या चीज हमारे को सक्सेस लेकर लाकर देगी और क्या चीज ऐसा है जो कि हमें गिरा भी सकती है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ को लोअर भी लेके जा सकती है. ओके, सो अनकवर किया आप लोगों ने अपनी नीड्स, फिर आप लोगों ने अपना प्रोटोटाइप वगैरह बनाया, देन यू हैव टू गो थ्रू विद द फीडबैक ऑल्सो. आपने अपने आइडियाज, जो भी आपके आइडियाज थे, assumptions थे, आपने जो भी प्रोटोटाइप बनाया, you have gone through with them by putting them in your user's hand. Of course, आपने एक छोटा सा सॉल्यूशन बनाकर, एक आई कैन से प्रोडक्ट बनाकर आपने तो यूजर के हैंड में रख दिया. अब आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स हम हर एक चीज का फीडबैक देते हैं. So we as a user, okay, we are not saying I'm the solution finder. Now I'm taking me as a user. Now I have to observe that. I have to go through with the application and then I have to give the feedback कि नहीं मुझे ये नहीं ऐसी चीज चाहिए थी, ये चीज ऐसी नहीं, ये चीज ऐसी चाहिए थी. Fine. So observe the interactions. वो जो interactions होंगी वो भी एक client और एक I can say आपका solution provider के बीच में होंगी. So observe the interactions, listen carefully and capture their feedback. ये पॉइंट्स जो है ये एज अ डेवलपर है या फिर एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर के बेसिस पे है कि उन्हें इंट्रैक्शंस ऑब्जर्व करनी है, प्रॉपर्ली लिसन करना है, केयरफुली लिसन करना है, फीडबैक्स को कैप्चर करना है फेथफुली एंड अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस ऑल्सो. उनको फर्दर क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि अगर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो क्या होता है, देयर विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम. क्योंकि क्या होगा, अगर कोई चीज यूजर ने चेंज करने को बोल दिया, लाइक यूजर सेड कि नहीं आपने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा. मैंने अभी रिसेंटली कहीं देखा था कि उन्होंने इस तरीके से कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपको पूरी एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ जाए. सो दैट कैन बी क्रिएट आई गेस दैट विल बी अ काइंड ऑफ इशू फॉर यू. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं उस टाइम पे. यूजर कितने भी कर ले, क्लाइंट कितने भी क्वेश्चंस कर ले, नो इश्यूज. बट अगर मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की बात करूं या डेवलपर की बात करूं, यू शुड नॉट आस्क मच क्वेश्चंस. ओके, so this is about your uncover needs. Clear? Is it clear? Yes, is it clear or not? Okay, what about others? Next we have empathy map. Empathy map हम ग्रुप ए के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रुप बी के साथ हम लोग कल करेंगे. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद एन एग्जाम्पल. इसी में एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास एम्पैथी मैप का एग्जाम्पल है, आज हम लोगों ने एम्पैथी मैप का भी एग्जाम्पल किया, वैसे हमारे पास आज इस सिनेरियो का भी एग्जाम्पल. सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग. ओके, सी आई थिंक सो पर्सोना, सबको पता है कि पर्सोना में होता क्या कि लाइक ईच एंड एवरीवन हैविंग देयर ओन फीचर्स, ओन थिंकिंग, ओन पर्सनालिटी. तो हर एक का अपना अपना पर्सोना होता है. फाइन. Now, after you understand your persona and have a reasonable amount of empathy for them, for example, empathy. Let me discuss कि empathy map actually होता क्या. See students, empathy map में actually हम लोग करते क्या हैं, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम के पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करोगे आप लोग कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है. वो जो सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करना शुरू करोगे वो आप अपने लेवल तक रखोगे, मीन्स अप टू यू. आप अपने पॉइंट्स गैदर करोगे. अपने पॉइंट जब आपके गैदर हो जाएंगे उसके बाद यू आर गोइंग टू डिस्कस योर पॉइंट्स विद इन योर टीम. तो आप अपने पॉइंट भी डिस्कस करोगे, उनके पॉइंट्स भी डिस्कस करवाओगे. तो आप लोग क्या करोगे, एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे. ठीक है, पॉइंट्स मीन सॉल्यूशंस कि क्या क्या कर सकते हैं. उन पॉइंट्स के बाद हम लोग जो पॉइंट्स कलेक्शन, सबके पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, कुछ हाई प्रायोरिटी के पॉइंट्स निकाले गए हैं. आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू विद योर दिस steps of the empathy map. सबसे पहला हम लोग उसके बाद स्टेप क्या होगा, थर्ड वन,
आप लोग अपना एक एम्पैथी मैप बनाओगे। एम्पैथी मैप में आप 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हो। इट इज हैविंग 4 क्वाड्रेंट्स, दैट इज सेज, थिंक्स, फील्स एंड डज। ओके, इट इज हैविंग 4 क्वाड्रेंट्स। और 4 क्वाड्रेंट्स के बीच में क्या होता है, हमेशा आप एक इमेज लगाते हो। इट इज कंपल्सरी टू स्केच योर यूजर और स्टेक होल्डर इन द सेंटर। जो भी आप लोगों का यूजर है या फिर शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर है, ठीक है, आप लोगों के लिए उसको उसकी इमेज लगाना कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग ये मूरल पे कर रहे होंगे, जरूरी इमेज ही लगानी है, आपने उस पर्टिकुलर एरिया में, लाइक यहाँ जैसे कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू मेंशन 2 फर्दर थिंग्स। आपको उस पर्टिकुलर यूजर का नेम मेंशन करना है और यूजर का आई कैन से डेजिग्नेशन या फिर उसका वर्क, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेंशन करना है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, देयर इज अ इमेज, इमेज का नेम है राफा और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है डेवलपर। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक छोटा सा क्वाड्रेंट बनाकर दे दिया जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स थे। अब आपने क्या किया, अपने क्वाड्रेंट बनाया, आपने कैप्चर किया अपने ऑब्जर्वेशन। ओके, कैप्चर में क्या करोगे आप अपने ऑब्जर्वेशन में? कैप्चर में लाइक आपके जो भी पॉइंट्स है आप उन्हें एलोकेट करोगे कि ये फेस में आना है, ये थिंग्स में आएगा, ये फील्स में आएगा, ये डज में आएगा। लेट्स सपोज फेस में, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, फेज में मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द कूपन्स, ओके। एंड थिंग्स में मैंने ये लिख दिया दैट employees are going to have their cabs or employees are going to use cab facility on the daily basis, okay। सो क्या हुआ, ये मैं एक चीज मेरे सोचने में आ गई, एक चीज मेरे बोलने में आ गई। वन वाज इन अ सेज एंड वन वाज इन अ थिंग्स। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो सेज के क्वाड्रेंट के अंदर ही I can say that I'm trying to identify that which patterns matches out, okay। जो जो सिमिलर होंगे मैं उनको मैच आउट करूंगी इस तरीके से, लाइक ये सिमिलर है और ये सिमिलर है। जो सिमिलर मैं पहले विद इन द सेम ग्रुप कोशिश करूंगी इस ग्रुप के फर्दर ही, इस ग्रुप के अंदर ही सिमिलर मिल जाए। वंस दे आर डन मीन्स मैं अपने पैटर्न को फाइंड आउट कर पाऊंगी, आइडेंटिफाई कर पाऊंगी नोन और अननोन को। उसके बाद मैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट जाऊंगी, दैट इज नोन एज योर प्ले बैक एंड डिस्कस। प्ले बैक एंड डिस्कस में आप लोग क्या करोगे, यू विल ट्राई टू रिलेट अ रिलेशनशिप, ओके। हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट अ रिलेशनशिप? फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा था कि मैं कूपन प्रोवाइड करूंगी और मैंने यहाँ पे लिखा था दैट एम्प्लॉयज आर गोइंग टू यूज कैब फैसिलिटी ऑन द डेली बेसिस। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर दूंगी कि एम्प्लॉयज डेली बेसिस पे कैब फैसिलिटी यूज करेंगे और मैं उन्हें कूपन प्रोवाइड करूंगी। फाइन। तो ये पूरा एम्पैथी मैप होता है। नाउ व्हाट इज द रियल मोटिव ऑफ एम्पैथी मैप? आई कैन से कि एम्पैथी मैप ना किसी भी पॉइंट को, किसी भी इशू को ना क्लियरली डायरेक्ट कर देता है, आप लोगों के लिए इजीली विजिबल होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। यही चीज अगर मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में रखूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगी। चलो ऑल टेक्निकल पर्सन को फिर भी समझ है, नॉन टेक्निकल पर्सन को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई ये एम्पैथी मैप में रखा जाता है, एम्पैथी मैप में। और आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स यूज करते हो, तो स्टिकी नोट इज जस्ट सिंपल थिंग जो हर एक नॉर्मल पर्सन, वेदर दे आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, स्टिकी नोट्स हर कोई यूज करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड आवर पॉइंट्स इन द स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स को हम क्वाड्रेंट में एलोकेट करेंगे, प्लेस करेंगे और उसके बाद उनको मीन्स आई कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द पैटर्न्स कि कौन कौन से सिमिलर है, कौन कौन से सिमिलर नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनमें से एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई एक क्वाड्रेंट का दूसरे क्वाड्रेंट के साथ रिलेशनशिप पे है या नहीं है, मीन्स क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। फाइन। तो ये सब था आप लोगों के पास एम्पैथी मैप में। ऑल्दो हम लोगों ने ग्रुप ए के साथ एम्पैथी मैप कर लिया है, इसका पूरा एग्जांपल कर लिया, ग्रुप बी के साथ नहीं किया, ग्रुप बी हम लोग कल करेंगे, बट इतना ही आप लोग के एम्पैथी मैप में। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे एज ए सिनेरियो पे। एज ए सेड कि आप लोगों को पर्सोना पता है और अब आप लोगों को एम्पैथी मैप के बारे में भी पता है। इट्स टाइम टू टेक अ क्लोजर लुक एट द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी स्पेस दैट यू वांट टू इम्पैक्ट। फाइन। मीन्स अब क्या आया, इट्स अ ग्रेटर टाइम कि हम अपने प्रॉब्लम को गो थ्रू कर सके और अपॉर्चुनिटी को फेस कर सके दैट यू वांट टू इम्पैक्ट। जिस भी अपॉर्चुनिटी को आज अपॉर्चुनिटी पे आप काम करना चाहते हो उस अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर पाओ। यू प्रोबेबली हैव एन आइडिया ऑफ द एरिया दैट यू वांट टू टारगेट। मीन्स आपको जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर एरिया पे टारगेट करना है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया का पता होना चाहिए। फाइन। एज ए सिनेरियो मैप helps to document collective understanding of user workflows and are best used as precursor to exploring new ideas or for finding the right problem to solve. Fine. Now let me discuss this thing कि हम लोग करते क्या है एज ए सिनेरियो में।
स्टूडेंट्स एज ए सिनेरियो जो ये एक मैप है, फाइन, एम्पैथी भी एक मैप है, एज ए सिनेरियो भी एक मैप है। ये आपके डॉक्यूमेंट कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर वर्कफ्लो, इसके अंदर क्या करोगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करोगे। डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या करोगे, जो भी आपके पास वर्कफ्लो है प्रॉपर्ली, उस वर्कफ्लो का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करोगे एंड आर बेस्ट यूज्ड एज precursors for exploring new ideas. If you want to find new ideas, if you want to fetch some good result, okay, good I can solution, then you can go through with those particular documents. और for finding the right problem to the solve, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में भी आप बाकी सारे प्रोजेक्ट्स की एज ए सिनेरियो मैप यूज कर सकते हो। फाइन, अब इसके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आप सबसे पहले अपना सेटअप रेडी करो। आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ 4 रोज एंड लेबल ईच। आपको 4 रोज खींचनी है, ड्रॉ करनी है और उनको लेबल करना है। क्या क्या, फेजेस, डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको ये चारों लाइन लेबल्स वहां पे आई कैन से एलोकेट करने हैं। सबसे पहला फेज होगा आपके पास फेजेस, सेकंड फेज आपके पास डूइंग, थर्ड फेज है थिंकिंग और फोर्थ फेज है फीलिंग। लेट्स सी चारों में है क्या फर्दर। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, आपने पहली चीज सेटअप करी, सेटअप ऑफ द एक्टिविटी। सेकंड उन्होंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी का आई थिंक सबको ही क्लियर है कि हम लोग करते क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेम अगेन वी विल डू व्हाट इज आवर यूजर डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग थ्रू आउट द एक्सपीरियंस। हमने यही चीज करनी है कि क्या उसने what he has done, what he was thinking and what he is feeling. Okay, so हमने इन तीनों पॉइंट्स को फिल अप करना है स्टिकी नोट्स का यूज करके। फिर इसके बाद हमें रिव्यू करना है एंड आइडेंटिफाई करने फेजेस को। कैसे, यूज दिस टाइम टू क्लस्टर सिमिलर स्टिकीज। मीन्स आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी सिमिलर स्टिकीज है, ऑल्दो ये मैं थोड़ा बहुत थ्योरी में बता रही हूँ बट ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल के वे पे ही होगा। सिमिलर आप लोग क्या करोगे, अपने जो सिमिलर स्टिकीज हैं उनको क्लस्टर कर दोगे। क्लस्टर मीन्स ग्रुपिंग कर दोगे, उन्हें एक ऑर्डर में सेट कर दोगे, ठीक है। और ड्रॉ रफ कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट द यूनिक फेजेस ऑफ द यूजर्स करंट एक्सपीरियंस। या फिर आप उनको किसी भी एंगल से हाईलाइट कर सकते हो। ग्रुप्स बना दिए उनका, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। मैं ऐसे करके इसके ऊपर एक ग्रुप बना दूंगी, ठीक है, इनको अलग से एलोकेट कर दूंगी, इनको अलग से एलोकेट कर दूंगी। तो यू हैव टू डू सच थिंग्स। फाइन, तो आप हर एक फेज में ऐसे चेंज कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स यू कांट गो फ्रॉम वन फेज टू अनदर राइट हियर। ओके, आप डूइंग से थिंकिंग में नहीं जा सकते, डूइंग का डूइंग में ही करोगे, थिंकिंग का थिंकिंग में ही करोगे, ठीक है। ये तो था आपके थर्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, सर्कल एंड लेबल एरियाज दैट आर पर्टिकुलरली पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द यूजर एज वेल एज ब्लैंक एरिया वेयर यू नीड टू लर्न मोर। फाइन, मतलब क्या करना है आपने, अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने। कौन कौन से पॉइंट फाइंड आउट करने, 1 सेकेंड। या जैसे यहाँ पे ये बोला गया दिस इज नॉट इफेक्टिव, दिस इज नॉट इफेक्टिव, तो आपने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए, मिस यूज अपॉर्चुनिटी। अब पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देती हूँ फेजेस में क्या आएगा। फेजेस में आप लोग लिखोगे जिसके भी रिलेटेड आप पॉइंट्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी अटेंडेंस एप्लीकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे तो यहाँ पे लिख लोगे अटेंडेंस एप्लीकेशन। ये आपने ऊबर से रिलेटेड लिखा तो यहाँ पे लिख लोगे आप ऊबर। यहाँ आपने ओला से रिलेटेड लिखा तो यहाँ पे लिख दोगे ओला। यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल आई कैन से स्विगी से रिलेटेड लिखा है तो यहाँ पे आप फेज क्या दोगे, स्विगी। तो फेजेस तो हमारे पॉइंट के बेसिस पे होते हैं जो हम फर्दर पॉइंट्स बनाते हैं। क्लियर। अब जब ये एक बार आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए चारों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है कि हाँ जी आइडेंटिफाई करना है, सर्कल करना है, सर्कल एंड लेबल एरियाज दैट आर पर्टिकुलरली पॉजिटिव और नेगेटिव टू द यूजर। ठीक है, जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द यूजर उन्हें सर्कल करना है और लेबल करना है, ठीक है। एज वेल एज अब या तो सिर्फ पॉजिटिव वालों को करोगे या नेगेटिव वालों की करोगे, दोनों चीजों को मत कर देना, ये चीज का ध्यान रखना। मोस्टली हम लोग नेगेटिव वालों को ही करते हैं क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले पॉइंट्स कम होते हैं, ठीक है। एज वेल एज ब्लैंक एरियाज वेयर यू नीड टू लर्न मोर। तो ये पॉइंट्स हैं आपके फर्दर एज ए सिनेरियो के। क्लियर, एज ए सिनेरियो इस तरीके से चलता है। क्लियर, एज ए सिनेरियो भी आपको ऑब्जर्व के अंदर है, एम्पैथी मैप्स भी आपके ऑब्जर्व के अंदर आते हैं, रिफ्लेक्ट तो अभी शुरू होगा। ध्यान रखना ये सारी चीजें कि एज ए सिनेरियो किसके अंदर आता है, एम्पैथी मैप्स किसके अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी डिजाइन थिंकिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कुछ
points are that take back tips. It's not about the interface. Rather than focusing on the user pathways through the product user interface, pay close attention to the job task they are actually performed in order to accomplish your goals. मीन्स आपको जो भी पर्टिकुलर टास्क अलॉट हुए हैं गेम कंप्लीट करने के लिए, you you have to do what you have to pay your attention over them. Okay, then we have what's and all. What's and all में क्या है students, that when creating an is as a scenario map, जब आप अपना as a scenario map बनाओगे, it's important to articulate your user's actual current experience. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यूजर का एक्चुअल करंट एक्सपीरियंस क्या है. फाइन, उसका एक्सपीरियंस को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो वो बिल्कुल भी टेक्निकल ना हो, ओके, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो. So you should be work idle and work smartly. Fine. Check your math. Solutions presented to in a 2B scenario map should ideally be correlated with the pain points identified as is. Means हमें क्या होना चाहिए, जो भी आप लोग अपने सॉल्यूशंस पॉइंट आउट करोगे, अगर 2B सिनेरियो मैप में के थ्रू पॉइंट आउट करते हो, तो इट शुड बी कोरिलेटेड विद योर पेन पॉइंट्स. मींस इसका एक टेक्निक होती है लिखने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का एज ए सिनेरियो मैप रेडी होना चाहिए, और हम लोग आइडेंटिफाई उनको करेंगे एज इससे. फाइन. तो ये सारी चीजें आपके पास ऑब्जर्व के अंदर दो टाइप के टेक्निक्स आ गए. One is your empathy map, second is your as a scenario. Fine. Next we will continue with the second phase, that is reflect. Observe हो गया, अब हम reflect के through work करेंगे. So students, reflect, कोई मुझे समझा सकता है कि reflect में क्या हो सकता है? मुझे भी समझाओ, बच्चों को भी समझाओ, बाकी anyone? Any volunteer? No one? Okay, fine. So see, in the reflect what we have students, different people are interpret the same situation in very different ways. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट पीपल जो होंगे, दे विल ट्राई टू इंटरप्रेट द सिंगल कंडीशन. कोई भी एक सिंपल सिचुएशन है, सिंगल कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट वेज में से. ओके, फाइन. कमिंग टुगेदर टू रिफ्लेक्ट on our observations help us synthesize and analyze findings, building a more understandings of the users across the team. See what is happening actually. What you are going to do, you are going to perform your together, means in collaboration you are going to perform the task. Kaise? You are going to observe, and after that you are going to do what? You are going to coming together to reflect on your observations. Okay, help us synthesize and analyze findings. Means आप लोगों ने जो collaboration में अपने points gather किए थे, उन points का उन points की help लेकर you can synthesize and analyze the findings. जो भी particular issue है, जो भी problem है, उस problem का solution find out कर सकते हो आप. ठीक है. Reflecting is about converging on the point of view. Of course, reflect करना मतलब आप अपने एक solution की तरफ को इशारा कर रहे हो. See, as a project progress, we are constantly taking in new information. Okay. Now, observing generates fresh data about the real world. Of course, you know very well कि हर दिन आए दिन हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी का फ्रेश डाटा जनरेट हो रहा है. ठीक है. तो ऑब्जर्व करना उस पर्टिकुलर फ्रेश डाटा को about the real world while making generates new ideas and opportunities to pursue. Okay. ये तो सिर्फ एक साइड थिंग थी कि आपको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के साथ साथ यू हैव टू कंटिन्यू विद व्हाट, यू हैव टू कंटिन्यू विद योर वाइल मेकिंग और जनरेटिंग न्यू आइडियाज. जब न्यू आइडियाज जनरेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हो, उन सबसे रिलेटेड. फाइन. इट्स इजी टू गेट ओवरवेल्म, ड्रिफ्ट आउट ऑफ अलाइनमेंट और लूज साइट ऑफ द मिशन वी सेट आउट टू अकम्प्लिश टुगेदर. करेंगे क्या हम लोग एक्शन इसमें? सी, वी विल ट्राई टू ड्रिफ्ट आउट द अलाइनमेंट. जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, वी विल ट्राई कि वो इजिली रिलेट हो पाए, इजिली आप लोग उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए. फाइन. देन वी हैव दैट लूज साइट ऑफ द मिशन वी सेट आउट टू कम्प्लीट टुगेदर. मीन्स हम लोगों ने जो भी पर्टिकुलर एक लेवल रखा था कि हाँ जी इस लेवल तक कि हम अपने मिशन को कंटिन्यू करेंगे, या फिर हम सिर्फ इतना ही अमाउंट इस मिशन पर लगाएंगे, सो you might can lose that particular site. Fine. Then we have, therefore it's important to regularly reflect as a team.
means you should work in a team. Reflecting brings your team together to synchronize your movements. Of course, जब आप लोग एक बार ग्रुपिंग में काम कर रहे हो, so your movements will give a better, your synchronization will give a better result. Okay, they will synthesize what you have learned. Of course, क्योंकि क्या होता है जब भी हम ग्रुपिंग में काम करते हैं, आप लोगों की नॉर्मल थिंग है कि हम लोग जब ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो ग्रुप में पढ़ने से हमारे डाउट ज्यादा क्लियर होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें हमारे डाउट नहीं पता चलता है, बाकी अगर 5% है तो बाकी 4% के भी डाउट पता चलते हैं. तो एक तरह से ग्रुपिंग में आप बहुत चीजें अपनी क्लियर कर पाते हो. फाइन. सिमिलरली अगर कोई सॉल्यूशन की बात करूँ तो एक सॉल्यूशन को अगर आप ग्रुप में परफॉर्म करोगे तो कितने ज्यादा इजीली आप उस पर सॉल्यूशन को गेट कर सकते हो. फाइन. तो ये चीजें हमारे पास है रिफ्लेक्ट में. रिफ्लेक्ट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, गेट टू नो ईच अदर. आप क्या करोगे, वही आप सेम पॉइंट्स ही होंगे इसमें भी कि कल्टिवेट अ कॉमन आइडेंटिफाई टू डिस्कवरिंग व्हाट यूनाइट्स यू एज अ टीम. Okay, what unites you as a team? Get to know each other as people and build empathy with them as you would like, as you would with your users. Of course, आपको अगर रिफ्लेक्ट के लिए यूज करना है तो आपको पहले एम्पैथी मैप्स को क्रिएट करना ही पड़ेगा. आप लोग एम्पैथी मैप्स वगैरह क्रिएट करोगे, ठीक है. एम्पैथी मैप्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सेकंड फेज चेंज हो जाता है, अलाइन टू ऑन इंटेंट. If you find yourself drifting out of the alignment, slow down and examine the intent and motivations behind your work. Okay, like आपको क्या लग रहा है कि आप अपने जो भी आपका पर्टिकुलर वर्क का पाथ है उस पाथ से हट रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, यू विल गेट स्लो डाउन. ओके, आप एग्जामिन करोगे अपने इंटेंट को. ओके, एंड देन यू विल मोटिवेशन, वट एवर द मोटिवेशन यू हैव बिहाइंड योर वर्क, you will just try to remember this and start working on your project or start working on your path, but in a correct way. Okay, come to a common understanding of the user's problem you are solving and outcome you are working to achieve together. So ये कुछ प्रॉब्लम्स वे होते हैं आपको अचीव करने के लिए. फिर आप अनकवर करोगे न्यू इनसाइट, सेम थिंग प्लान करोगे और फिर अपनी स्टार्ट कर दोगे. तो ये चीजें आती है हमारे पास अपने ऑब्जर्व में, रिफ्लेक्ट में. और फिर आपके रिफ्लेक्ट से रिलेटेड भी एक आपके पास एग्जाम्पल है. ठीक है, फिलहाल मैं भी इस एग्जाम्पल को नहीं डिस्कस कर रही हूँ. यहाँ पे दो एग्जाम्पल है यहाँ पे. देन लास्ट इसी से रिलेटेड आपके पास आ जाएगा. 1 सेकेंड. या ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उसके बाद लास्ट पॉइंट बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेक. मेक में तो वही चीज है कि आप प्रोटोटाइप डिजाइनिंग करोगे, अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर किए, इन्फॉर्मेशन गैदर के बेसिस पे, गैदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप प्रोटोटाइप डिजाइनिंग करोगे, उसे मार्केट में रिलीज करोगे, फीडबैक लोगे और आपका फिर यहाँ से अगेन रेस्टलेस इन्वेंशन कंटिन्यू होता रहेगा. थोड़े बहुत चेंजेस करते रहोगे, फिर आप मार्केट में रिलीज करोगे, फिर चेंजेस करोगे, फिर मार्केट में रिलीज करोगे. ये पूरा सिस्टम हमारे पास ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, मेक. इज इट क्लियर? एक बार इसे जो भी आपके पास कंटेंट है इसे पढ़ना, जहाँ पे जो भी इशू आएगा आप लोगों को हम लोग फिर डिस्कस लिया करेंगे इन पॉइंट्स को. फाइन. तो अभी थ्योरी है, एनी हाउ आपको थ्योरी खुद भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत. रेस्ट सीआर मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बोला था कि प्लीज एक बार अपनी क्लास से बात करके मुझे बता देना दैट आर दे वांट टू कंटिन्यू विद द Moodle डिजाइनिंग एज एन असाइनमेंट या फिर दे नीड सम काइंड ऑफ थ्योरी पार्ट. इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हम सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे अभी. ठीक है, डिजाइन थिंकिंग के जितने मेरे पास एग्जाम्पल्स इसमें. क्लियर? तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? इतना ही करेंगे अभी, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आगे फर्दर थ्योरी. यस, एनी